उस गाने के साथ मैं आपको एक हल्का ट्रिविया दे दूं, कुछ मुश्किल हालात में हमने वो गाना शूट किया। कहीं वो डर था कि जब भी रिमिक्सेस बनते हैं ना, लोगों का परसेप्शन दो टाइप का होता है, इधर दे लव इट और देन दे स्टार्ट डिसलाइकिंग इट, सेइंग यार ये क्या बना दिया. तो डिड दैट थॉट एवर कम टू यू? I think you have fulfilled that song. So So honestly. I said it is that song. It is that song. Mudassar and me have come across a reel where one kid has thought that Sachin Tendulkar is Yeah. the most overrated Yeah, goodness. cricketer. The biggest part Mudassar is not कि हम बैठे हमने सोचा कि यार आज का अर्जुन कौन है? That's true. I had to crack that. मैं अपनी फ्रेटर्निटी को लेकर के एक बात से मुझे हल्की सी शिकायत है, एंड आई एम रिपीटिंग एंड आई एम स्ट्रेसिंग, दो आई हैव सेड इट ट्वाइस बिफोर, इसमें गलती ऑडियंस की नहीं, गलती फिल्म Of इंडस्ट्री। course. लव ट्रायंगल का जमाना तो गया, अब होने वाला है पूरी की पूरी लव सर्कल. चलिए बात करते हैं इसी के बारे में. मुदस्सर, जैकी, वेलकम टू रेडियो नशा. Well, thank you. Thank you so much. You know, I just want to start off by saying that what an amazing trailer. I cannot wait to watch the movie, to be very, you. very honest. Thank you. बहुत ही मज़ा आने वाला है. I want to start off by asking you that एक पैटर्न देखा है कि आपकी सारी मूवीज में पति पत्नी और वो एंड देन हैप्पी भाग जाएगी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द teen love circle of course, but ऐसा है कि there's a good balance of both comedy and emotions. Okay, I want to ask you, how was it challenging for you to balance both? क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा emotions भी है ज़्यादा comedy भी है. How do you do the balance? मैं एक्चुअली शायद बैलेंस की उतनी फिक्र नहीं करता. मैं चेस, शायद जो वांट होती है, जो चेस होती है, वो होती है ऑडियंस को हंसाने की लार्जली. और मैं ये मानता हूँ कि ये जो रिश्ते हैं ना, ये आप जो भी कह लीजिए मोहब्बती रिश्ते या शादी ब्याह वाले जो रिश्ते होते हैं, इसमें क्या होता है कि यू नेवर शॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन. तो सिचुएशंस इन तरह के रिश्तों में रोज बनती रहती हैं. तो अब क्योंकि आप इसमें कॉमेडी तलाश कर रहे हैं, तो आप अपने हिस्से की कॉमेडी ढूंढिए. द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप प्रोवाइड्स द ड्रामा ऑन इट्स ओन. At least that's what I Yeah, feel. yeah. You know, because I don't think that there is any romantic relationship or association that can be completely conducted without drama. Of course. हम सब Yeah. की लाइफ में ये चला हुआ ही है. तो आप अपने हिस्से की कॉमेडी बटोरिए, ड्रामा अपने आप उसमें चला आता है. तो आई डोंट रियली वरी अबाउट द बैलेंस, टू बी ऑनेस्ट. Jackie, talk to me about your journey. I mean, you've been an actor and now producer. Which is more tough and which one do you enjoy the most? This is a. I think producing is by far, I feel, one of the most challenging, Yeah. professions, roles, because it requires not just providing financial services, Right. but it requires bringing people together, providing for, managing people, Mothering a film almost. mothering Yeah. film, coming up with solutions in real time, right? Because there are so many challenges which are thrown at you. So yeah, I feel it's one of the most underrated, because he's also a producer. So he'll agree with me yeah. that producing, I feel, is one of the most underrated Yes. jobs in our Jobs, industry. yeah, that's true. You know, one thing that I love to do is when a trailer is released, I love going through the comment section because it is hilarious. So there's this one comment which said that Arjun Kapoor roasting himself is the funniest thing in this trailer, right? And even when I spoke to Arjun about this, he was so open about the fact that तुम खुद पे जोक नहीं ले सकते, तुम दूसरों पे मजाक कैसे उड़ा सकते हो, right? So talk to me about that dynamic and the comic timing of each of the actors that are there in this movie. Well, the dynamic around that comes largely from the fact that we have made a comedy film, and hence that sort of a trailer can be made only for a comedy film, and not if we were making another kind of film, we'd look very silly Right. doing that. To give the gentleman or the lady who commented Commented, the way they did, I feel कि इसके लिए मतलब आपको ज़्यादा क्रेडिट शायद उन एक्टर्स को देना पड़ेगा, क्योंकि वो they stepped out on the front foot. Yeah. And they allowed for the joke to happen, Right. so that he or she enjoyed it as much as they did. Right. So I think the credit is theirs. I can, if at all, only take the credit of conceiving it. The execution, I think, is coming from a place of security from both the producer as well as the actor. Yeah, absolutely. You know, the question is to the two of you that we see a lot of re-releases that is happening now. Yeah. And then there is this
whole drama of massy films being released, right? इनके बीच में आप अपनी फिल्म how do you expect the audience to perceive it? Do you think that there is an audience for every genre और कैसा कैसा फील होता है? देखिए, मैं क्या मानता हूँ कि आप ना एक अच्छी नीयत के साथ ऑडियंस को ये बताने की कोशिश कीजिए कि आपको उनसे क्या चाहिए और आप उनके लिए क्या लाए हैं। और आई थिंक मेरे हस्बैंड की बीवी बहुत साफ तौर पे कोशिश ये कर रही है कि ऑडियंस को ये कहे कि हम आपको हंसाने आए हैं और हमको आपसे प्यार चाहिए। Right. तो ये रिलेशनशिप हमने ये कॉन्शियस एफर्ट भी था आई थिंक, जब हम प्रमोशंस भी डिज़ाइन कर रहे थे फिल्म के। तो ये जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि भाई ये इतना होपला है, कोई कह रहा है मैंने 500 करोड़ रुपए का एक्शन करवाया है, Exactly. कोई कह रहा है मैंने वीएफएक्स के लिए ऑस्ट्रेलिया से किसी को बुलवा लिया है, कोई कह रहा है कि साहब फलाना फलाना हम जमीन के 200 फीट नीचे जाकर के सर मुझे तो नहीं पता हमने कुछ किया या व्हाटएवर। तो ठीक है, एंड ड्यू क्रेडिट टू ऑल ऑफ देम हु आर मार्केटिंग all these factors of the films that they have made. But I think every film positions itself in a way in which they know what they are telling the audience. और मुझे नहीं लगता जैकी या मैं या अर्जुन या भूमि या रकुल, हम में से कोई भी इस गलत फहमी में है या इस फूल्स पैराडाइज में है कि हमने तो कुछ यार कमाल ही कुछ ये वो नहीं। हमने एक हंसी मजाक की, एक परिवार के साथ देखने वाली, दोस्तों के साथ देखने वाली एक फिल्म बनाने की कोशिश की है। हम आपसे ये चाहते हैं कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ अगर ये देखें तो कोई ऑकवर्ड मोमेंट, कोई मुश्किल घड़ी, so important, कोई क्लासिफिकेशन ऑफ जॉनर नहीं, यार बेटा तू मुझे क्यों ले जाता है एक्शन दिखाने, मुझे तो पसंद नहीं आता। तो ये इसको हटा करके हमने एक फिल्म बनाई। True. And see, to add to Mudassar, and to your question, right? तो नियत, like he said, most important. Right. And you know, ये re-release हो या बड़ी फिल्म हो या छोटी फिल्म हो या ये scale बड़ा है, production, because I've done a lot in the last 2 years, right? So I just feel the audience is looking for that honesty in that piece of content. Yeah. Right? मतलब हमारी रहना है तेरे दिल में ने ज़्यादा हमें शेयर दिया in one of the films we released last year. So point ये नहीं है, point हमेशा ये है कि like मुदस्सर said कि हम एक honesty से, एक अच्छी नीयत से हमने एक फिल्म बनाई है जो आप किसी के साथ भी आके देख सकते हैं and you will really enjoy the film. Right? Absolutely. हम कुछ yeah. over promise या under promise नहीं Yeah. Yeah. I have to mention that the minute Gori Hai Kalaya released, इतना trending होने लगा है, and you can see so many people recreating the hook step and all of that, and 25 million plus views in a week. That says something, right? Talk to me about the entire music album. एक और भी release हुआ है, Ikwari, which I absolutely love. Lyrics Thank you. आपने लिखा है? जी। Oh my God, बताइए उसके बारे में। Well, actually पहले तो दो हाफ्स में आपका क्वेश्चन है। पहले तो गोरी है कलाइया का लार्जली क्रेडिट जैकी को जाता है, इसलिए क्योंकि जैकी उस गाने को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट थे। Okay. वो चाहते भी थे और जानते भी थे किसी तरह से, या उनका हंच था कह लीजिए, कि ये गाना ना मुदस्सर ऐसे करना चाहिए, और मैंने महज उसमें सिर्फ इतना कंट्रीब्यूट किया इफ एट ऑल कि उसको फिल्म के कॉन्सेप्ट से किस तरह बेस्ट मैरी किया जाए उन विजुअल्स को। क्योंकि ट्रेलर के बाद वो अगला गाना आ रहा था, तो हम चाहते थे कि जो चीज़ आपने ट्रेलर में, जैसे आपने पहले कहा कि हमने अर्जुन को एक तरह से देखा, you know, कि वो अपने ऊपर मजाक ले रहा है, तो मैंने उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। बट उस गाने का ज़्यादा श्रेय क्रेडिट जो है मैं जैकी को और जस्ट म्यूजिक को दूंगा, बिकॉज अ सॉन्ग ऑल्सो, इट्स रीच इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो एंड व्हेन कमिंग टू इक्वारी, आई फील इक्वारी में सिचुएशन या बहुत वक्त के बाद ना, एक्चुअली हमारे पास इस फिल्म में सिचुएशन थी जहाँ पे कि किसी का संगीत हो रहा है और दुल्हन है या टू बी ब्राइड है और उसकी फैमिली है और टू बी ग्रूम की फैमिली है, और इत्तेफाक से वहाँ पे एक्स भी अपनी फैमिली के साथ है और बेस्ट फ्रेंड है और होने वाली का भाई है। तो हमारे पास ना वो सिचुएशन थी, तो इक्वारी जस्ट बिकेम लाइक वो हर स्टेज पे सेलिब्रेशन थी। पहले कॉम्पोजिशन सिलेक्ट करने में, जिसमें अगेन हम दोनों ही उसमें जिम्मेदार हैं, अगेन ही deserves a lot of credit in it.
और साथ ही साथ फिर ना उस गाने के हर स्टेज पे हम सेलिब्रेट ही कर रहे थे। पहले लिरिक्स लिखे, फिर आपस में सुने, फिर बोला अरे ये बहुत अच्छे हो गए लिरिक्स। फिर हम शूट करने गए वहाँ पे, और कुछ ना हमने कुछ उस गाने के साथ, मैं आपको एक हल्का ट्रिविया दे दूं, कुछ मुश्किल हालात में हमने वो गाना हाँ, शूट किया। वो बहुत जरूरी है बोलना। जैसे हाँ, कि बावजूद, well there are certain factors not in your control, जैसे weather and especially when you're in of Scotland, you know, course, yeah. और वो जो एक बड़ी अच्छी एक लग्जरी रिजॉर्ट है जहाँ पे हमने ये डेस्टिनेशन वेडिंग को सेट किया है, इसीलिए वो लोकेशन इतना खूबसूरत लगता है जो लगता है। तो द पॉइंट बीइंग कि वो वेदर अनप्रेडिक्टेबल था, और यू नो इवन फ्रॉम अ प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव, एक चीज़ होती है कि आप इंग्लैंड में लंदन में कुछ अरेंज करवा रहे हो, आप स्कॉटलैंड में भी, ग्लासगो में भी, आपके डायरेक्टर ने चुनी है लोकेशन जो ग्लासगो से भी शहर से कुछ दूर है। तो तो डांसर्स नहीं आए, तो कभी कुछ नहीं हो रहा है, डांसर्स कभी आए कुछ तो 400 डांसर्स या 200 डांसर्स 3 बजे कह रहे हैं हमको घर जाना है, घर जाना है। You know, इस तरह की बातें, because they're not used to, Yeah, of you know. व्हाइट शॉर्ट पहले Yeah. खत्म करो। अच्छा फिर सब हो गया, सबको मना लिया, सब हुआ, एक राहत की सांस ली, तो आसमान की तरफ देखा तो गड़ 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 कुछ हो रहा है। तो वो हुआ उस गाने के साथ। बट आई थिंक वो जो स्पिरिट था, Yeah. मैं आपको बता रहा हूँ, आपके शायद जो सुनने वाले हैं वो सुनकर देखने वाले इस बात को एंजॉय करेंगे कि बहुत वक्त के बाद शक्ति कपूर एक फ्रेम में नाच रहे हैं, अनीता राज एक फ्रेम में नाच रही हैं, मुकेश ऋषि उसी फ्रेम में नाच रहे हैं, कमलजीत सिंह उसी फ्रेम में नाच रहे हैं, डीनो मोरिया उसी फ्रेम में नाच रहे हैं, आदित्य हर्ष सील। गुजराल, आदित्य सील उसी फ्रेम में नाच रहे हैं। तो इट्स नॉट अबाउट अर्जुन कपूर, भूमि और रकुल anymore. That song just has a family, absolutely, you know, vibe. yeah. It's a reunion that we needed it. हर संगीत पार्टी में ना संगीत वाला एक फिनाले सॉन्ग होता है Yeah, Yeah. correct. जिसमें पूरी फैमिली आ जाती Yeah, है। correct. For me this is that song। Yeah. Yeah. And I can tell it's for sure. You know, because he said so much about Gori Hai Kalaiya, I have to ask you this, that since you were so confident, कहीं वो डर था कि जब भी रिमिक्सेस बनते हैं ना, लोगों का परसेप्शन दो टाइप का होता है, either they love it or then they start disliking it, saying यार ये क्या बना दिया। तो did that thought ever come to you when you were making Gori Hai Kalaiya? You know, I don't want to sound pompous in any way, but that thought never came to me because when we were discussing about Gori Hai Kalaiya, I thought personally, I thought that it was a very, very big song, Yeah. but even back in the day, it did not get its due. I agree. It was not chumma chumma de, Yeah. right? So I felt that, you know, that's a great start, right? Number one. Number two, the whole idea was that what do you construct around the hook, which is new, where you get credit for, na yaar ye construct around it also is equally good. And if you know, the original has Gori Hai Kalaiya, पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। बाल माँ, Yeah. हमने उसको साजना कर दिया और फिर उसको 4 टुकड़ों में चार हाँ। टुकड़ों में कर दिया, so that the Gen Z Of course. really enjoys it. Yeah. Yeah. And then of course, you know, we just had a blast. But that's a very interesting way to look at it. I mean, we haven't discussed this, Yes. that you thought that the song didn't get enough of its Yeah. due. That in was the past. first thought. First thought, yeah. Wow. Yeah, well, I mean that's quite phenomenal. See, as far as I am concerned, ना जब ये बातें remix Yeah. ये वाली जो बातें होती हैं, देखिए मुझे लगता है कि बात पहले तो ये दोनों ही फैक्टर जो जैकी ने कहे कि इस गाने में खुद का कुछ है या नहीं है, जो बीच की जो कॉम्पोजिशन है, जो बहुत अच्छी आईपी ने लिखी भी है कि यू नो एकता मैं तेरे पीछे पीछे आईयाँ, घर वाले तो करके लड़ाइयाँ, ये जाहिर सी बात है ओरिजिनल का हिस्सा नहीं है और ये इस गाने की अपनी आइडेंटिटी को लाता है। दूसरी बात ये कि अगर म्यूज़िक, मैं आपको, मेरी बड़ी बहन की एक बेटी है, शी इज़ अबाउट 16 now. It's a barometer that I try to Right. judge things by, Okay. because you want to know what Cater, yeah, for sure. to everyone. See, she doesn't know this song is from Aaj Ka Arjun. Oh, And yeah. she of doesn't course. know. I think only And 90s can kids we, would can know. we blame Yeah. her? No. Can we blame her? Can I turn around and tell her, Aisha, how do you not know this song? ये इतना अच्छा गाना है, इतनी मेहनत की थी शबीर कुमार साहब ने, इतनी मेहनत की थी लता जी ने, तो she'll say, why are you getting worked up, bro? What's the True. exactly. She would say that, yeah. आज क्या है, आज गोरी है कलाइयाँ, she listens to it, Yeah. she may want to listen to the original, she may want to make the comparison. So honestly speaking, where's the problem? Yeah. It's a nice connect to have. It's a nice yeah. connect to have. Yeah. Wow. वो वाली No, I've to experienced one of my young cousins in the 15th कि
I think you have copied that song. So So honestly. I said, it is that song. It is that song. Oh God, Oh, so nice. innocent. Yeah. Baki to we've just, both Mudassar and me have come across a reel where one kid has thought that Sachin Tendulkar is one Yeah. of the most overrated Yeah, goodness me. cricketers. तो सर अगर वो हो सकता है Really? हो- हाँ yeah. तो Oh अगर my वो हो God, सकता है हाँ, तो कुछ भी तो हो सकता ये है सब फिर। जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि आई हैव नॉट सीन दिस सॉन्ग फिर कौन आप कौन हम हाँ कौन है हाँ, क्या है क्यों है? seriously. You know, और प्लीज वन बिकॉज़ द बिगेस्ट पार्ट मुदस्सिर इज नॉट सेट कि हम बैठे हमने सोचा कि यार आज का अर्जुन कौन है That's true. I had to crack that. Yeah. I had to crack that. you know, while watching the trailer, for me the highlight, apart from Arjun, Bhumi, and Rakul being together, it is also Shakti Kapoor, Tiku Talsania sir, and Dinu Moria. I mean, we wanted as a 90s kid, हमको देखना है कि why are they not working now, Correct, right? So correct. talk to me about working with them and सबके comic timing कितने मजेदार है, and that's amazing. यार मैं इसमें तो मेरा ना जीरो क्रेडिट No, you've mothered the movie, so. यार इसमें क्या है ना, देखिए मैं सबसे पहले तो आपको कहूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ, इस लायक नहीं हूँ, मैं दूर दूर तक नहीं मानता कि आई हैव एनी क्रेडिट टू कमेंट ऑन शक्ति सर्स कॉमेडी Of एंड हिज course. कॉमिक टाइमिंग। मैंने इस फिल्म में कास्ट करके उनको खुद के ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हम जब शूट कर रहे थे साथ में तो मैंने उनसे वो हर सवाल पूछ लिया एज अ 90s के, जो मुझे उनको पूछने की बेहद तमन्नाएं थी कि सर ठक्की टिक्की कहाँ से आया, कि क्या सोच के आपने ठक्की टिक्की True. बनाया, या मैं एक नन्ही- छोटा सा नन्हा हाँ। सा प्यारा सा बच्चा हूँ, बच्चा। तो वो या नंदू नंदू सबका सबका बंधु। बंधु। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स ना, मैं कॉमेडी का एक सर्वेंट हूँ और मैं कोशिश करूँगा ताउम्र कि मैं जो है कॉमेडी बनाता चला जाऊँ। मेरे लिए शक्ति सर के साथ काम करना इन दैट स्फीयर वाज समथिंग एल्स ऑल टुगेदर। Bringing back people like Dino, revisiting somebody like Anita ji, who looks, by the way, stunning. Stunning. Oh my God, Stunning stunning, at yeah. whatever age. Yeah. There is one person in the world for whom age is just a number. It is Anita Raj. Yeah. So having all of them in the same frame, I almost as a that child in me was ticking off boxes. It's like a fanboy कि moment मैंने for कर you. लिया इनके साथ काम, अब मेरा ये हो गया, मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। तो there is nothing that I can comment on their work. They are exemplary in the parts that they have played, and inshallah when you all watch the film, you all will realize कि यार ये जो thought है ना आपके दिमाग में कि अरे ये लोग कहाँ थे, ये ज्यादा काम क्यों नहीं कर रहे, वो compound हो जाएगा शायद after watching that. Just what we needed. Yeah. Lastly, I have to ask this question that खेल खेल में I जी. absolutely loved it. Thank you. बहुत बार देख लिया है मैंने, and my parents have gone berserk looking at this movie and they're like, I oh hope my they haven't God. played the game. No. He's praying. But I have to ask you कि how much does a box office success mean to the two of you? You as actor and producer, and for you as a director. See, I'll tell you, मुझे तो ना it means the world to me. Of course. Box office success is validation, not just for money. Right. Box office success is validation for the fact कि आपकी फिल्म बहुत लोगों तक पहुंची, या आपने जिस मीडियम के लिए फिल्म बनाई थी, थिएटर के लिए, वहां लोग गए और उन्होंने देखी। अब कभी कभी किसी कारणवश ये नहीं होता है। खेल खेल में इज अ फिल्म दैट टॉट मी कि ये जो तुम्हारी वांट है कि ये बहुत लोगों तक पहुंचे, ये बॉक्स ऑफिस के बियॉन्ड भी कभी कभी पूरी हो जाती है। Of course. तो दिस वाज द लर्निंग फ्रॉम खेल खेल में। मेरे लिए हमेशा बॉक्स ऑफिस इंपॉर्टेंट रहेगा, बट मैं अपनी फ्रेटर्निटी को लेकर के एक बात से मुझे हल्की सी शिकायत है, Okay. और वो इंटरनली भी मैं कई लोगों को कहता हूँ कि ये गुज़िश्ता 10, 12, 15 साल से शायद हम ऑडियंस को फिल्म से ज़्यादा कुछ और ही मार्केट करने लगे हैं। True. Maybe. तो अब क्या हो गया ना कि हम कई सारे जो यंगस्टर्स हैं वो आपस में ही ये बात करने लगे हैं कि यार आई वांट टू सी व्हाट द वीकेंड फिगर्स आर, देन आई विल गो एंड वॉच द फिल्म। अबे तेरा क्या लेना देना फिगर्स से? तो अपनी चॉइस बना I ना। agree with this. Yeah. एक ही साल में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और रंगीला रिलीज हुई थी,
है ना, मैं 14 साल का था, मैंने दोनों फिल्में देखी, मेरे पास उन दोनों फिल्मों की यादें हैं। मेरे पास इरोस सिनेमा में एक लाइट शो हुआ था जो पहली बार हुआ था, रंगीला की, उसकी याद है। याद मेरे पास पलट पलट या खान साहब जो बाहर लटके हुए थे और काजोल भाग रही थी उसकी याद। मुझे नहीं पता दोनों फिल्मों के फिगर क्या है भाई, नहीं, एंड इट डिडंट मैटर। मुझे आज तक नहीं पता, मैं डायरेक्टर हूं इतने सालों से, मुझे नहीं पता। मुझे ये दोनों फिल्में मरने तक उतनी ही अजीज रहेंगी दोनों। हो सकता है दिलवाले ने, हो सकता है क्या, हम सब जानते हैं दिलवाले ने रंगीला से बहुत ज्यादा पैसे कमाए, मगर तो क्या मैं मुन्ना भूल जाऊं, मिली भूल जाऊं उसके लिए? वो तो नहीं मैं कर सकता ना। तो माय कैरेक्टर्स, माय लव नीड्स टू कम फ्रॉम व्हाट आई लव। तो आई वांट आल्सो, एंड इसमें हमारी गलती है, फिल्म इंडस्ट्री की गलती। 10 साल से हमने ये तमाशा किया हुआ है कि इसने 100 कर लिए, उसने 200 कर लिए, उसने 300 कर लिए, क्लब तो वगैरह। बच्चे अब आजकल बात कर रहे हैं, हमने गलती की है। yeah, absolutely. अगर हम सिर्फ अपनी फिल्म मार्केट कर रहे होते तो वो सिर्फ फिल्म देख रहे होते। तो I that's the think thing. that's also the reason why re-releases are working, because even back then हम कहाँ सोचते थे? Absolutely. आज जो सनम तेरी कसम देखने जा रहा है वो थोड़ी मन में सोच रहा है कि इतना नंबर है तो। Also because re-release के ऊपर ना वो बैगेज है और ना वो प्रेशर है Correct. ऑफ परफॉर्मेंस। आपने FMCG, होटल इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, किसी भी इंडस्ट्री में आपने कभी नहीं सुना होगा कि प्रमोटर ये बोले कि यार मैंने ना शैम्पू इतने में बनाया है, ये मेरी सेविंग है, इतना मैंने धंधा किया। Absolutely. ये तो आपका सीक्रेट है, क्यों बताओगे आप? राइट? यू हैव टू, सो इन दिस व्हाट इज हैपनिंग इज दैट जो जेन्युइन फिल्में होती हैं, देयर इज स्कोप फॉर इट टू ग्रो, Yeah. right? All of us, and I'm saying, They unfortunately suffer. you know, media, Yeah. producers, actors, you know, audiences just they are lapping whatever information you're giving We are them. giving them. Correct. अरे यार ये तो खत्म हो गई। अरे यार, because maybe हो सकता है, पहली बात तो इतना कुछ हो रहा है आजकल, to just shout out and grab Yeah. attention sometimes it's tough. Tough. Yes. So what he said is, like, back in the day, you used to have films which came and they grew, Yeah. and on merit, they grew or did Yes. not grow. Today it's become so much pressure Hmm. that yes, even now there are some films which grow, but you are still, huge audience is now deciding to go to a film or not depending on weekend के collections क्या हैं. Collections. And I'm repeating and I'm stressing, though I've said it twice before, इसमें गलती ऑडियंस की नहीं, गलती फिल्म Of इंडस्ट्री। course, आप ये information हमने दोगे. Yeah. हमने फिल्मों के मार्केट करने के तरीके को बेहतर बनाना चाहिए। इस पे ऑडियंस की नहीं, हमारी गलती है। Wow. Thank you so much for such an you so insightful much. conversation. Most welcome. Lastly, अगर ऑडियंस को बताना चाहिए कि एक रीजन why they must go and watch your movie, क्या बोलते हैं आप? We'll start with you. मेरे लिए I think the one word would be मनोरंजन। Perfect. मेरे लिए of course भी मनोरंजन, but आप बताइए, क्योंकि हम तो हमारे बारे में हाँ, अच्छा बोलेंगे. करेक्ट, ये भी अच्छी बात है। Point. आपने भी कुछ आपने trailer भी trailer सुने, देखा गाने है, भी गाने सुने, भी सब सुन. मेरे लिए तो two the songs of course, Goriya Galaya, and secondly entertainment. And I've already told I'm a 90s kid. I'm dying to watch everybody on the screen together, and I'm going with my parents. Lovely. So How nice. that's going to be a How nice nice. trip Well, for I me. promise that they'll have a good time and so will Yeah, you. they love your movies anyway. So thank you so Thank much. you. Thank you. Okay. Radio Nasha.